के चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पथियार क्या कीजे, अब पथियार क्या कीजे। बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रामैया कारणे, हम बल बल जाऊं रामैया कारणे, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिचरे थे माधो, बहुत जन्म
उजरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेके। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਚਮਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਨਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਦਾਨੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਬਚਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 7 ਬਚਨ स्वामी जी रात है। माता पिता होर दुखी हो गए कि अगे ते कला रविदास सी, हुण इहदी घरवाली भी इहो जी आ गई। माता पिता ने सलाह की ते क्या रविदास तेनू असी जन्म दिता, वड्डा कीता, तेरा विआह कर दिता ते असी तेनू हुण कमा के खुआ नहीं सकते। तेनू जिन्ना समान चाहिदा ओ लै लै ते तू वखरे हो जा। रविदास भगत ने जो समान चाहिदा सी ओ लै लिया। शाही सड़क ते भगत रविदास ने अपनी छन पा ली, हुण इत्थे रहन लग पए ने। दोनों मियां बीबी दोनों वक्त बंदगी करते ने, सुभाव एक ने, क्योंकि भगती भी तां ही हो सकती है जे घर विच शांति होवे। जिस घर विच सुख नहीं, जिस घर विच शांति नहीं,
ਉਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ-ਗੰਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ, ਸੋਹਣੀ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਜਪਾਂਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੜਦਿਆਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਇਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਵੇਗਾ। ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ, ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੰਡ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ।
ते असी तेनू अपने प्रेम दे नाल बन्ने। तेरा नाम जप के तेरी दिती हुई मोह माया तू असी छुट जाने। ते तेरा नाम जप के तेनू अपने हिरदे विच असी कैद कर लिया। असी तां छुट गए हां मोह माया तू। हुण तू कोई ऐसा जतन कर, सामणियों ते चला गया है। मेरे हिरदे विचों निकल के दस, मैं तां तेनू मन्ना। जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम हरा दे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो। कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। भगवान चले गए। राती सुते, सवेरे उठे ने रविदास भगत आसन झाड़िया। 5 मोहरा सोने दियां निकलियां। ठीकरियां समझ के एक पासे रख दित्तियां। रोज आसन झाड़दे ने, रोज 5 मोहरा निकलदियां ने। ठीकरियां समझ के एक पासे रखी जांदे ने। इन्हां दिनां विच गंगा ते अपीज नक्षत्र दा मेला लग्या करदा सी। रविदास भगत दे घरों कहन लगे, स्वामी जी बड़े लोग गंगा ते नहाण वास्ते जा रहे ने। मेरा भी दिल करदा है असीं भी गंगा ते जाके इशनान करिए। रविदास भगत कहन लगे, भलीए लोके जेड़े लोग गंगा ते इशनान करन जांदे ने, गंगा माई नूं भेटा कुछ ना कुछ जरूर चढ़ांदे ने। तेरे कोल कुछ भेटा धरन वास्ते है। कहन लगे, स्वामी जी एक दमड़ी है कसीरा, ओ दमड़ी पल्ले बन्नी गंगा ते इशनान करन वास्ते तुर पए ने। गंगा घाट पहुंची, की देखिया हजारां लोग गंगा ते इशनान करन वास्ते आए हुए ने। कोई सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कोई गहने, कोई दीवे बाल बाल के डूनिया विच रख के गंगा माई नूं भेटा धर रहा है। ते गंगा माई सब कुछ रोड़ के ले जांदी। रविदास भगत अपनी घरवाली दे नाल एक पासे जाके खलो गए ने। ओ दमड़ी कसीरा कढ़िया। इशनान करन तो पहला ओ दमड़ी गंगा दे विच सुट्टी। जदों ओ दमड़ी गंगा विच सुट्टी ते पानी दे विचों एक 5 उंगलां वाला हाथ बाहर निकलिया। ओ दमड़ी
उस हाथ ने फड़ लई ते आवाज आई, रविदास तेरी भेटा गंगा माई ने प्रवान की थी। भाई गुरदास जी इस गल दी शाख भरदे हन, लिया कसीरा हाथ कढ कि गंगा माई ने अपना हाथ कढ के ओ कसीरा ओ दमड़ी प्रवान की थी। एक कौतक उन्हां हजारां लोकां ने जदों देखिया कि साडी भेटा गंगा माई रोड़ के ले जा रही है, असी खुश हो रहे हैं कि साडी भेटा गंगा माता ने प्रवान की थी। पर किसी दी भेटा गंगा माई हाथ कढ के भी प्रवान कर दी है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ वापस आ गए ने। रविदास भगत जदों भी आसन झाड़ते ने 5 मोहरा सोने दियां निकलदियां ने। चंगा ढेर लग गए। एक दिन भाख्या आई, रविदास ये सोने दियां मोहरा ने ठीकरियां नहीं, जेड़ियां तू एक पासे रखी जाना है, ਇਹ मैं आप खुश होके तेनू दे रहा। तू सोहनी मंदिर मकान बना, सवेरे एक सेठ आवेगा बहुत सारी माया लैके, ताकि लोकी शक ना करन कि गरीब कोल इन्नी माया कित्थों आ गई। तेरे वो मंदिर मकान बनावेगा, ओनू इनकार ना करी। रविदास भगत उठे, अपनी घरवाली नूं कहा, भलीए लोके इस तरह मैनू भाख्या आई। रविदास भगत दे घरों कहन लगे, स्वामी जी जे परमेश्वर दी इहो ही मर्जी है तां इसे तरह होण दिओ। दिन चढ़िया, एक सेठ माया दियां थैलियां लैके हाजिर हो गया। रविदास भगत नूं मत्था टेकिया। क्या भगत जी मेरे घर लड़का कोई नहीं सी, तुहाडी शोभा सोहनी, अरदास कीती जे मेरे घर पुत्र होया ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा, मैनू हुण आग्या दिओ। रविदास भगत ने आग्या दे दी। सोहने मंदिर मकान बन गए। भगत रविदास उन्हां मंदिर मकानां विच आके बैठ गए ने। संगत भी बहुत आन लग पई, कीर्तन होण लग पे। बनारस विच हर पासे भगत रविदास दी जय जयकार होण लग पई। पर यह गल जेड़े पंडित लोग सन उन्हां नूं चंगी ना लगी कि एक चमार जुतियां गंढण वाला वो मंदिर विच बैठ गया। लोग ओदी पूजा करन लग पए ने। इन्हां सारियां ब्राह्मणां ने सलाह कीती कि रविदास नूं मंदिर दे विचों कढा दईए। ये सारे जने तैयार होके जेड़ा समय दा नवाब सी ओदे कोल चले गए ने भगत रविदास दी शिकायत करने वास्ते। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे,
चिर पयो दर्शन देके कह रविदास आस लग जीवो। कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे। 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 बनारस दे पंडितां ने इकट्ठे हो के समय दे नवाब दे कोल ये शिकायत की थी कि रविदास चमार है, मंदिर विच बैठा पूजा करवा रहे, इन्हें साडा धर्म भ्रिष्ट कर दिता है, इनू रोकिया जावे। ते नवाब उन्हां ब्राह्मणां नूं कहन लगा, धर्म दा मामला है, इहदे विच मैं कोई फैसला नहीं दे सकदा। एक काम करने आ, उस मंदिर दे विच जिन्नियां भी मूर्तियां ने वो सारियां मूर्तियां एक चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे पार रख देने ते पहला पंडित आवाज मारन, वो मूर्तियां बिना किसी सहारे दे पानी ते तुर के गंगा दे इस पासे आ जान, ता पंडित पूजा करनगे। फिर रविदास आवाज मारे, जे रविदास दी आवाज ते ओ मूर्तियां गंगा तू तुर के आ जान, ता रविदास पूजा करेगा। जे दोनों दी आवाज ते मूर्तियां आ जान, ता दोनों नू अद्धियां अद्धियां मूर्तियां असी दे देंगे। पंडितां ने यह फैसला मान लिया। उन्हां नूं मान है असी उच्चियां जातां वाले, जिन्हें उपाय गंगा ते स्नान करने, काला इलम जानने। रविदास नूं उस परमेश्वर ते भरोसा सी। भगत जी कहन लगे, सानू भी यह फैसला मंजूर है। दिन मिथ्या गया, मंदिर दीयां सारियां मूर्तियां चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे किनारे रख दित्तियां। दूसरे पासे रविदास भगत, ब्राह्मण, नवाब होर काशी बनारस दे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। बहुत वड्डा जिवें मेला लगता है, इस तरह दुनिया इकट्ठी हो गई। नवाब ने पंडितां नूं कहा, तुसी आवाज मारो ताकि वो मूर्तियां बिना किसी सहारे पानी ते तुर के इस पासे आ जान। इत्थे एक गल
कहनी जरूरी है। रविदास भगत ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, पर एक गल कही, जे इंसान का प्यार सच्चा है तां पत्थर दे विचों भी वो परमेश्वर नूं पा सकदा है। नवाब ने पंडितां नूं कहा, आवाज मारो उन्हां मूर्तियां नूं। लगे आवाजां मारन, पर पत्थर दीयां मूर्तियां किस तरह आ सकदियां ने? काला इलम भी कईयां ने पढ़िया, पर कोई पेश ना गई। शर्मिंदे हो गए, कहन लगे, नवाब साहब कलयुग दा समय, इन्हां मूर्तियां दे विच जान नहीं पै सकदी, पर ये मूर्तियां सुते सिद्ध मनोकामना पूरी कर दिंदियां हन। नवाब ने रविदास भगत नूं कहा, भगत जी हुण तुसी आवाज मारो, ओ मूर्तियां गंगा दे इस पासे आ जान। रविदास भगत चौंकड़ा मार के बैठ गए, अखां बंद कर लईयां, हाथ जोड़ ले। उन्हां मूर्तियां वास्ते अरदास नहीं की, उस परमेश्वर दे दर्शनां वास्ते रविदास भगत जी अपनी बाणी विच इउं बेनती करते ने, अपने मन की तड़फ परमेश्वर दे सामने इउं बयान की। भगत रविदास जी ने, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश बदेश ना बूझे। भगत जी कह रहे ने, कूप कहंदे ने खूह नूं, कि जिस तरह खूह दे विच पानी भरिया हुंदा है ते ओहदे विच डड्डू हुंदा है, उस डड्डू नूं इह नहीं पता कि इस खूह दे बाहर भी दुनिया है। इसे तरह है परमेश्वर, मैं भी मोह माया विच फसिया होया उस डड्डू की तरह, मैनू नहीं पता तू कैडा वड्डा है, तू किन्ना बयान ते ये मैं नहीं जान सकता। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश बदेश ना बूझे। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोया, कछ यारा पार ना सूझे। सगल पवन की नायिका, एक छिल दर्श दिखाए जी। कहने लगे, सगल पवन के नायका, ऐ सारी दुनिया दे मालका, एक वारी तां आके मैनू दर्शन दे। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। करो कृपा ब्रह्म चुकई, मैं सुमत देहो समझाई। जोगी सुर पावे नहीं, तो गुण कथने अपार। प्रेम भगत के कारणे, कह रविदास चमार। ऐ परमेश्वर, मैं बेनती प्या करदा, मैं चमार हां, पर तेरे नाल प्यार बहुत है। कृपा कर ते मैनू दर्शन दे।
रविदास जी तां अखां बंद करके मन जुड़ के बैठे ने, पर वो जिहड़े देखण वाले लोकी ने उन्हां नूं इस तरह लग्या जिवें वो पत्थर दीआं मूर्तियां हिलण लग पईयां ने। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। दूसरा शब्द, तुम चंदन हम रंड बापुरे। ऐ परमेश्वर तू चंदन है, बहुत खुशबू वाला है, पर असी बहुत नीवे हैं, विकारां दे भरे होए। जिस तरह जिहड़ा चंदन दे कोल रहिंदा है वो भी चंदन वर्गा हो जाता है, खुशबू वाला हो जाता है। इसे तरह असी नीवे सीगे, पर तेरे नाल लग के असी भी ऊंचे हो गए हैं। तुम चंदन हम रंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच पाए हैं, गंध सुगंध निवासा। ते देखण वालियां नूं इस तरह लगे ओ मूर्तियां पानी दे अध तक आ गईयां ने, पर रविदास भगत नूं कोई पता नहीं, क्योंकि मन परमेश्वर दे चरनां दे नाल जोड़े है। ते तीसरा शब्द ए उचारिया, हम सरदीन दयाल ना तुम सर। दीन कहंदे ने गरीब, भगत जी कह रहे ने कि मेरे वर्गा कोई गरीब भिखारी नहीं ते तेरे वर्गा कोई दाता नहीं हैगा। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवने अबोल। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, किन्ने जन्म हो गए ने तेरे तो विछड़े हैं, पर ये जिहड़ा जन्म है ऐ परमेश्वर मैं तेरे लेखे ला दिता है। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो। रविदास जी कहने लगे मैं तां एक तेरी आस ते बैठा कि कदों तू मैनू दर्शन देवे। बड़ा चिर हो गया है तेरे दर्शन कीते हैं। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। सारियां मूर्तियां गंगा दे पार आ गई। हर पासे
जय जयकार होने लग पई। पंडित खिसक गए ने। नवाब ने हाथी मंगाया। ओ मूर्तियां हाथी ते रखियां। रविदास भगत जी नूं उत्ते बिठाया। फुल्लां दी वर्खा हो रही है। सोने दा छतर सिर ते फिर रहा है। एक जलूस दी शक्ल विच ये सारे लोग मंदिर वाल तुर पे। हर पासे जय जयकार देखी। सिर ते छतर भी देखे ते रविदास भगत उस परमेश्वर दे नाल जुड़ गए। अपने मन की अवस्था अपने शब्द विच इउं बयान कीती। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐ परमेश्वर ऐसी लाल इन्ना प्यार मेरे वर्गे चमार दे नाल तेरे तू सिवा होर कौन कर सकदा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज गरीबां नूं निवाजण वाला मेरा गुसैया, मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर, जेड़ा माथे छत्र धरे। गरीबां दे मथे ते भी सोने दे छत्र चला दिंदा है। किथे मैं जुतियां गंढण वाला। मेरे हथों कोई पानी पी के राजी नहीं, पर अज मेरे सिर ते भी सोने दा छत्र फिर रहा है ते दुनिया नमस्कारां पई करदी है। गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र तरे जांकी छोट जगत को लागे। तां पर तू ही डरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। जेड़ा मेरा गोबिंद है, मेरा परमेश्वर, वो नीचा नू ऊंचे कर दिंदा है। क्यों? इस वास्ते कि वो किसी तो डरदा नहीं। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहूं ते ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो। रविदास भगत ऐ संत जनो, ऐ दुनिया दे लोको, मेरी गल सुनो। हर जीओ ते सबे सरे। वो जिहड़ा हरि परमेश्वर है वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह कि मेरे वर्गे चमार नूं अज उन्हें किन्ना मान बख्शिया है। कह रविदास सुनो रे संतो। हर जियो ते सबे सरे। चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे। रविदास भगत दी सोभा। चितौड़ राणा सांगा एदी घरवाली झाला बाई ने भी सुनी। तीर्थ यात्रा के बहाने रानी झाला बाई बनारस रविदास भगत दे मंदिर विच आ पहुंची। संगत बैठी। रविदास भगत हाथ विच खड़ताला फड़ के भरी संगत विच ये शब्द पढ़ रहे सन। जदों रानी झाला बाई
मंदिर विच पहुंची। जल की पीत पवन का तंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। ऐ भाई, सब कुछ उदों तक जदों तक असी जीने आ, मर गए तां कुछ भी अपना नहीं, क्यों मेरा तेरा करना है। ऐसा असर राणी ते होया। जो कुछ भी लैके आए सी, सारा कुछ भगत रविदास दे चरनां ते भेटा कर दिता। चेली बन गई। 1 महीना रह के फिर वापस चली गई। पर पंडितां नूं बड़ा गुस्सा लगा कि इन्नी माया रविदास कोल चली गई। ये चितौड़ जा पहुंचे ने। राणी नूं कहा कि तुसी राजपूत हो, पर तुहाडी घरवाली ने एक चमार नूं गुरु बनाया, धर्म भ्रिष्ट कर लिया। राणी नूं गुस्सा चढ़िया। राणी दे महलां विच गए। कहन लगे, राणी बनारस तो कुछ ब्राह्मण आए ने, कहंदे ने तू चमार नूं गुरु बनाया। राणी कहन लगी, स्वामी जी ਉਹ पंडित माया दे भुखे ने, आओ मेरे नाल। पंडितां नूं कहा, तुहानूं मूंह मंगी माया देंगी, ਇਹ दसो कि सच्चा भगत कौन है। ਉਹ ते आए माया वास्ते सन, माया मिली। कहन लगे, सच्चा भगत ते रविदास सी। राणा भी हुण श्रद्धालु बन गया। रविदास भगत नूं चितौड़ बुलाया। बड़ा वड्डा भंडारा किया गया। हजारां लोग इकट्ठे होए, ब्राह्मण भी, राजे भी, अमीर भी। जिस दिन भंडारा होना सी, हजारां लोग पंक्तां विच बैठे ने। रविदास भगत जी आके बैठे। भंडारा शुरू होने लगा ते पंडितां ने रौला पा दिता। कहन लगे, चमार साडे नाल बैठेगा तां असीं रोटी नहीं खानी। राजा कहन लगा, ये तां मेरे गुरु ने, जे मेरा गुरु ना बैठा ते मेरा भंडारा सफला नहीं होना। पंडित कहन लगे, राजन या तां कल्ले रविदास नूं खुश कर ले ते या सानू सारियां नूं। ते रविदास जी कहन लगे, राजन ये ठीक कहंदे ने, मैं चमार जुतियां गंढण वाला, ये ऊंचियां जातां दे मालक, मैं इन्हां दे नाल बैठण दे लायक नहीं हैगा, इन्हां नूं पहलां खवा लो। रविदास भगत अपने कमरे विच चले गए, पर मन दुखी है। उन्हां लोकां नूं कुछ नहीं कहा। अखां विच अथरू भगतां दे गिले शिकवे परमेश्वर नाल हुंदे ने ते इह शब्द उचारिया, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। ऐ परमेश्वर, मैं ते अगे दिन रात ही सोचदा रहना। मेरी संगत नीवी, मेरा बहना उठना भी नीवियां दे नाल, मेरा जन्म भी चमारां दे घर, मैं तां अगे ही सोचदा रहना। मेरी संगत पहुंचे सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। राम गुसैया जी के जीवना, मोह ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सवाई, चरण ना छाड़ो
शरीर कल जाए। कहन लगे आज मैं भी फैसला कर लिया कि तेरे चरण नहीं छड़ने, भावें मेरी जान क्यों ना निकल जावे। कि अज इन्हां लोकां ने मैनू पंगत विच उठा दिता, ये कह के ये चमार है, ये नीच है, ते तेरा नाम जपण वाला इन्ना नीच हो जाता है कि वह किसी नाल बैठ के रोटी नहीं खा सकता। जे तू अज भी ना बौड़िया ते कल नूं फिर कौन तेरा नाम जपेगा। मेरी हरो विपत चन करो सवाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। कह रविदास परो ते सांबा, बेग मिलो चन करना बिलांबा। ऐ परमेश्वर सांबा कहंदे ने शरण नूं, बेग जल्दी मैं तेरी शरण पिया ते जल्दी आके मिल। बेनती की थी। उधर भंडारा शुरू हो गया। जदों ब्राह्मण रोटी खान लगे ने ते की देखदे ने कि रविदास नाल बैठा होया। जेड़ा ब्राह्मण थाली विच हथ पांदा है नाल रविदास भगत भी हथ पांदा है। रौला पै गया। हर कोई कहन लग पिया कि रविदास मेरे नाल बैठा है। राजा कहन लगा रविदास तां अपने मकान विच बैठे ने, कमरे विच बैठे ने। हजारा ब्राह्मण उन्हां सारियां दे नाल एक एक रविदास बैठा होया है। रौला पै गया। तां विच सियाणे भी सन। कहन लगे भई रविदास तां एक है, हजारां दे नाल जे एक एक रविदास बैठा है तां इह लीला परमेश्वर दी है। वो सच्चा भगत है। आओ चलिए। सारे उठे ने। रविदास भगत दे चरनां ते मत्था टेकिया। रविदास भगत नूं अपने नाल बिठा के उन्हां सारियां ने भोजन छकिया, खिमा मंगी। उन्हां सारियां फिर उच्चियां कुलां वालियां ने, ब्राह्मणां ने फिर रविदास भगत दे चरनां ते मत्था टेकिया। ते रविदास भगत जी ने उन्हां लोकां नूं फिर उपदेश कीता है। ये रविदास भगत दा जीवन जिन्हां ने माया दा त्याग कीता, परमेश्वर दा नाम जपिया ते गुरु अर्जन साहब ने होर कृपा कीती। रविदास भगत दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीती। ते जदों भी आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकने आ, रविदास भगत नूं भी असीं मत्था टेकने आ। परमेश्वर दा नाम ऐसा है कि जिहड़ा भी इंसान मन करके जपदा है वो नीच तो ऊंच हो जाता है ते सारी दुनिया फिर उन्होंने मत्थे टेकदी है। जिस तरह रविदास भगत नूं सारी दुनिया मत्था टेकदी है। चिर पयो दर्शन देके, चिर पयो दर्शन देके, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे।